Many of you know that I used to work for the Aam Aadmi Party, and I gave them a lot of time and effort, and I quit. And I just remembered that I had been so excited about filling up the membership form and getting an email from them. Oh, you are now member of Aam Aadmi Party XYZ party number, and I just remembered that I never. Wrote to them or wrote a letter saying that I resign or that that please cancel my membership. And it just occurred to me that tomorrow some monkey from the Aam Aadmi Party can jump up and say you are still an active member of the Aam Aadmi Party and he's an Aam Aadmi Party member and blah 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 whatever. So I thought that maybe I should write a letter to the Aam Aadmi Party canceling my requesting a cancellation of my membership. And then I thought, fuck that, I'm just going to make a video making a public statement that I'm not a member of the Aam Aadmi Party and I have not been a member of the Aam Aadmi Party since 2016. So I thought I'd also take the opportunity to explain what is the event that caused that. And this video will serve as the public record that I am not a member of the Aam Aadmi Party and what I think of the Aam Aadmi Party. So I worked in Chandigarh for one candidate and then for the next. Most of the operatives in Chandigarh were loyalists of Yogendra Yadav, who was later thrown out of the Aam Aadmi Party. There's a whole story behind that, and there's also the story of how I tried to warn Raghav Chadha of what Yogendra Yadav was doing, and at the time, Raghav Chadha didn't want to hear it. And at the time that the candidate Gul Panag came to Chandigarh, this is the time that I tried to talk to Raghav Chadha. By that time, it was too late. Kejriwal and team didn't understand what was going on, but fine, whatever. I continued to do my best. Oh, the shit that I saw. Oh my God. कितना बेवकूफ बनाया आम आदमी पार्टी ने जनता का. But I had, for me, I'm a Sikh, but for me, the lesson of the Bhagavad Gita is profound. अपना कर्म करो. दुनिया गंदी है, कलयुग है, जो बाकी लोग करते हैं, you make a difference by your own actions. So I kept on my actions. The things I saw, someday I'll tell the story. Stories. But after the Chandigarh election, I was so disgusted that on the day of the election, 7 o'clock in the morning, I went and voted, went to the voting booth, I voted, and then I collected my team and I left and went to my farm, and I refused to do any election duty or booth duty that day. And as far as I was concerned, I was done with the Aam Aadmi Party. Khatam. But the 2014 election was still going on, and then a friend of mine asked me if I could go and help Baldeep Singh, who is a very greatly admired scholar of Sikh religious history and music. So I went to work for him in Taran Taran, and Taran Taran, I got to roam around in the rural villages of the Khemkaran district where the 1965 war happened. I got to see villages where the drug trade happens, where the drugs are coming across from Pakistan. Villages that look like the Wild West in America, where there is no policeman, and the local dadas walk around like, okay, that's another story. And Baldeep Singh that day showed me what courage is, and Aam Aadmi Party guy shows up amongst these buggers. Oh, I had an adventure, really character building experience and learning something. But then there were issues about, the Aam Aadmi Party thought that by that time the breakup with Yogendra Yadav had already happened with the Kejriwal. I don't remember exactly. But that happened, and then I just left. Because I had seen so much filth, I decided to live my life. I got in my car and I oh man, notifications keep coming. Let me turn off the internet here. Just one sec. Oh, airplane mode.
And then, I quit. I didn't work for the Aam Aadmi Party for nearly 2 years after that. Uh, my Guruji refused to accept my reasoning. He said that you have abandoned your post. कोई अच्छा कोई बुरा, तुम अपना कर्म करो. तो पंजाब की इलेक्शन 2016 की पंजाब की इलेक्शन आ रही थी, अपना कर्म करना है. सो आई वेंट बैक. My Mamaji lives in Amritsar, and I went, so this is Majha, the heart of Punjab, the heart of Sikhism. So I went, and again, disheartened. I was totally disheartened by how Arvind Kejriwal had no interest. He was not on the ground. He didn't show up. ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने लोग हैं, वर्कर्स कैसे हैं, टिकट्स किसको मिली हैं, क्यों मिली हैं, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, कैपेबिलिटी क्या है. अरविंद केजरीवाल हैड नो इंटरेस्ट. द होल थिंग वाज बीइंग रन बाय संजय सिंह. संजय सिंह इज नाउ आम आदमी पार्टीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद 2 गुप्ता ब्रदर्स. तो कोई आम आदमी पार्टी वाले जरा पूछें कि ये जो 2 गुप्ता ब्रदर्स हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये इनकी आम आदमी पार्टी की ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्वमेंट क्या रही है कि दे आर नाउ राज्यसभा मेंबर्स. बट एनीवे, सो देयर वाज संजय सिंह एंड अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का कैंपेन में बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा पाठक, आई फॉरगेट हिज नेम नाउ, यंगस्टर. So this guy from UP and this guy from Bihar, who उनकी हर बात पे मुझे दिखता था कि इनको सिख से नफरत है, कंटेम्प्ट है, कि सिख बेवकूफ़ और नालायक होते हैं. और ये आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की इलेक्शन चलाने आए थे, और इन्होंने बड़े सारे चूजे चमचे सिखों में से इकट्ठे कर रखे थे, खास करके जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, खालिस्तानी टाइप्स थे. पर ठीक है, मैं अपना काम करते जा रहा हूँ. टोटली डिसअपॉइंटेड. मैंने ओवर द मंथ्स देखा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतते जीतते सपोर्ट जनता की जा रही है, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे कोई दिख ही नहीं रहा है. अरविंद केजरीवाल को पंजाब में क्या होगा, इलेक्शन कैसे जीती जाएगी, पड़ी नहीं है. बट अगेन, अपना कर्म करो. सो आई केप्ट एट इट. एंड देन द सर्जिकल स्ट्राइक थिंग हैपेंड. 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, यू रिमेंबर दैट? तो अब मैं इस मोमेंट से पहले आई वाज एंटी मोदी, आई वाज एंटी बीजेपी, आई वाज एंटी नेशनलिज्म, आई वाज सारा. लेकिन मेरी अपनी एक्सपीरियंस से, क्योंकि आई ग्रो अप इन कश्मीर एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे पाकिस्तान की एम्बिशंस, बिहेवियर्स और स्ट्रैटेजीज की 100% समझ थी. और मुझे ये भी समझ था कि पाकिस्तान इंडिया की कौन सी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है, इंडिया की कौन सी करप्शंस को एक्सप्लॉइट करता है. हाथी को सांप डसता रहता है और हाथी को सोच नहीं आती है, तो सांप कहाँ डसता है, कैसे डसता है, वो सब मैंने समझ रखा था. तो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, देन केजरीवाल स्टार्ट्स गोइंग. पंजाब की इलेक्शन जीतनी है भैया तुमको. तुम दिल्ली के सीएम हो, ठीक है, लेकिन पंजाब की इलेक्शन जीत गए तो कल को कुछ भी हो सकता है. तुमको पंजाब की इलेक्शन में ये अकालीस की करप्शन को लेके ये की भी इन्होंने, सैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, सब ट्रांसपोर्ट माफिया है. अगर तुम सच्चे हो और तुमको पंजाब की इलेक्शन जीत जाते हो तो तुम पंजाब बदल दोगे. अगर तुम पंजाब बदल दोगे तो तुम हिंदुस्तान बदल सकते हो, अगर तुम सच्चे हो. लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऑन द ग्राउंड कुछ पड़ी नहीं थी. लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हो गया. अब वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमको सुनाया गया था, क्या वो सच्चा था, क्या वो झूठा था, क्या उसमें प्रोपेगेंडा वैल्यू थी, क्या वो लोग 2 किलोमीटर अंदर गए, क्या वो लोग 30 किलोमीटर अंदर गए, कहानी जो भी थी, एक इंडियन, लॉयल इंडियन सिटीजन होते हुए अरविंद केजरीवाल हैड टू बैक अप आवर प्राइम मिनिस्टर. तुमको बीजेपी पसंद है नहीं है, मोदी पसंद है नहीं है, आरएसएस पसंद है नहीं है, हिंदू नेशनलिज्म पसंद है नहीं है, इट डजंट मैटर. द मैन्स आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड अक्रॉस द एनिमी are the villains and the dragons who will eat your children and destroy your civilization if they get a chance. और वो हर ओकेजन पे मौका ढूंढते हैं
कि इंडिया की कोई सक्सेस, इंडिया की कोई शराफत, इंडिया की कोई लेजिटिमेट पॉइंट को घुमा के उल्टा कर दिया जाए ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने चूतिया लगें। और केजरीवाल वही बातें करना शुरू हो गया। पंजाब तो तुम काम कर नहीं रहे हो, लेकिन केजरीवाल वो बातें करना शुरू हो गया जिससे पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक पे डोमेस्टिकली विद इन पाकिस्तान, इंडिया में डोमेस्टिकली विद इन पाकिस्तान एंड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया का स्टैंड बर्बाद हो जाए, इंडिया की पोजीशन बर्बाद हो जाए, मोदी जलील हो जाए और पाकिस्तान कहे कुछ हुआ ही नहीं तो इंडियन झूठे हैं जी। ये मुझसे हजम नहीं हुआ। तुमको पॉलिटिक्स करनी है, तुमको इंडिया को सुधारना है, तुमको इंडिया में और पॉलिटिकल पार्टीज की एजेंडाज या आइडियोलॉजीज या मेथड्स पसंद नहीं है। इंडिया का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलें, जनता को सुनाएं, सिखाएं, मेहनत करें, उनसे पावर छीन लें। वो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ जहाज चलाने वाले बदमाशों का प्रोपेगेंडा का बेनिफिट करने बैठे हुए हैं आप। आई वाज डन। जिस टाइम पे ये खबरें चल रही थी कि पंजाब में जी 100 सीटें आने वाली हैं, भी पंजाब जीतेगा, मैंने आम आदमी पार्टी जीतेगी, मैंने कहा मैं चला। तो मैं उठ के उस दिन अमृतसर से मैंने मामा जी को कहा मैं चला। मैं अपने मामा जी, अमृतसर में मेरे मामा जी रहते हैं, उनके घर पे था मैं। उस दिन मैंने मामा जी को कहा कि मैं चला, मेरा हो गया। न मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बस मैं चला गया। और उसके बाद मेरा आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम की बात है। क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि इंडिया की पॉलिटिक्स जितनी गंदी, घटिया, क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जैसी भी है, हमको पता है, पैसे दे के टिकट्स मिलती हैं, क्या हर पार्टी के 25-25, 30-30 साल के नलायक बेवकूफ बच्चे सीटें भरने के लिए आगे लाके लीडर के नाम पे जितवा दिए जाते हैं। जो चलता है वो चलता है, हमको पता है। तो वो तो सब है ही है, लेकिन ट्रीजन कुछ होता है, सिडिशन कुछ होता है। और अरविंद केजरीवाल ने उस मौके पे अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पाकिस्तान से पैसे मिले थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान का काम कर रहा था, पर यह सच्चाई है कि उसको कोई ना होश, ना सेंस, ना अकल, ना रिगार्ड, ना कंसर्न, ना अवेयरनेस कि नेशन कुछ होता है और नेशन का एक बहुत ही खतरनाक राक्षस दुश्मन है। और तुम ऐसी हरकतें मत करो जिससे राक्षस का फायदा हो अपने लीडर, अपने नेता, अपनी सरकार, अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो इस पॉइंट पे मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उस टाइम के बाद से मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर ना हूं, ना होना चाहता हूं, ना रहूंगा। ना मुझे केजरीवाल पे कोई भरोसा है, ना मुझे केजरीवाल या केजरीवाल के किसी लॉयलिस्ट से कोई कदर या इज्जत या कंसिडरेशन है। मैं आम आदमी पार्टी की पेपर वर्क में होंगी, मेरी रजिस्ट्री होगी, कोई मेरा मेंबरशिप नंबर होगा, रहे। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, सीधी सी बात है। और इससे मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंडिया में आप समझ लें कि ये चाहे आप जब भी देखें, इंडिया की पॉलिटिक्स है। आपको मोदी नहीं पसंद, आपको हिंदुत्व नहीं पसंद, फाइन। लेकिन इंडिया में जो पॉलिटिशियन वो बात करता है जिससे पाकिस्तान का फायदा होता है, उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो आप हाफिज सईद के साथ चाहते हैं। इसके बारे आप कोई डाउट ना रखें। थैंक यू।